उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति मुरगांव बंदरगाह का दौरा करेंगे। वहां वे बंदरगाह की नई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति ICAR केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का भी दौरा करेंगे। गोवा की अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति का गोवा के राजभवन जाने का भी कार्यक्रम है। वहां वे राजभवन परिसर में चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का लोकार्पण करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान आपके दिल में है, किसान आपके मन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को संबोधित किया। इस वर्ष की सभा का थीम वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ है, जो विश्व स्वास्थ्य के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। दुनिया को योग देने वाले देश से होने के नाते प्रधानमंत्री ने सभी देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली this year is One World for Health. It resonates with India's vision for global health. When I address this gathering in 2023, I had spoken about One Earth, One Health. The future of a healthy world depends on inclusion, integrated vision, and collaboration. Friends, inclusion is at the core of India's health reforms. We run Ayushman Bharat, the world's largest health insurance scheme. It covers 580 million people and provides free treatment. This program was recently extended to cover all Indians above the age of 70 years. We have a network of thousands of health and wellness centers. They screen and detect diseases such as cancer, diabetes, and hypertension. Thousands of public pharmacies provides high quality medicines at far less than the market price. Friends, technology is an important catalyst to improve health outcomes. We have a digital platform to track vaccination of pregnant women and children. Millions of people have a unique digital health identity. It is helping us integrate benefits, insurance, records, and information. With telemedicine, nobody is too far from a doctor. Our free telemedicine service has enabled over 340 million consultations. Friends, due to our initiatives, there has been a heartening development. The out-of-pocket expenditure as percentage of total health expenditure has fallen significantly. At the same time, government health expenditure has gone up considerably. Friends, the health of the world depends on how well we care for the most vulnerable. The global south is particularly impacted by health challenges. India's approach offers replicable, scalable, and sustainable models. We would be happy to share our learnings and best practices
with the world, especially the global south. Friends, in June, the 11th International Day of Yoga is coming up. This year, the theme is Yoga for One Earth, One Health. Being from the nation which gave yoga to the world, I invite all countries to participate. Friends, I congratulate the WHO and all member states on the successful negotiations of the INB Treaty. It is a shared commitment to fight future pandemics with greater cooperation. While building a healthy planet, let us ensure that no one is left behind. Let me close with a timeless prayer from the Vedas. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukh bhag bhavet. Thousands of years ago, our sages prayed that everyone should be healthy, happy, and free from disease. May this vision unite the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पर्यटन विकास के लिए एक अहम बैठक की। इसमें पर्यटन की स्थिति की समीक्षा हुई और नए कदमों पर चर्चा की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सतत पर्यटन और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया। बैठक में सतत पर्यटन, बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटल मार्केटिंग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इसके साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी में स्वस्थ भारत की आशा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में जिले की आशा सहयोगिनी बहनों के साथ संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आशा बहनें देश के स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ है। जब कोई नहीं पहुंचता तब ये बहनें सेवा, मातृत्व और संवेदना के साथ गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और जरूरतमंद परिवारों तथा पोषण दवाइयां और उपचार पहुंचाती हैं। हमारी माओं के अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, वीरता शौर्य की कहानी, उन्हीं संस्कारों के कारण भारत की मिट्टी पर पैदा होने वाला हर बेटा बेटी देश और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहता है। और आप सब आशा सहयोगिनी बहनें जो दूर दराज के इलाके के अंदर जहां और लोगों का पहुंचना भी असंभव होता है, आप वहां पहुंचकर उन माता बहनों की स्वास्थ्य की पहली किरण होती हैं। हर माता बहनी स्वस्थ रहे, उसके होने वाला पुत्र पुत्री स्वस्थ रहे, उसके लिए आप लगातार प्रयास करती रहती हैं। जहां जिन माता बहनों को पोषण की आवश्यकता होती है, वहां पोषण उपलब्ध कराया जाता है। जहां दवा की आवश्यकता हुई, दवा दिलाई जाती है। जहां खून की आवश्यकता होती, खून दिलाया जाता है, ताकि हर माता बहनें स्वस्थ है और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुपोषित मां अभियान के सफल क्रियान्वयन में इनका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है।